तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਮੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 34ਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਗੋਇਲ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਿੰਕੂ ਪਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਗੋਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट के लिए हम अपने शरीर को योग का दान देंगे, क्योंकि आज तक आपने जो दान सुना है, कपड़े का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, काफ़ी पैसे का भी दान करते हैं। आज हम दान करेंगे अपने ही शरीर को, योग का दान करेंगे और प्रकृति के 5 तत्वों को भी योग का दान करेंगे, क्योंकि हर कार्य दान से ही शुरू होता है। तो आराम से बैठ जाइए अपने साथ। इसको ब्रह्म अंजलि कहते हैं।
इससे क्या होता है, जो भगवान से हम शक्ति लेते हैं वो बाहर नहीं जाती, हमारे पास ही, जैसे कि एक सोलर सिस्टम में हम वो संग्रहित कर लेते हैं, ऐसे ये पावर हम इकट्ठी कर लेते हैं। इसलिए सीधा बैठे, बिल्कुल सीधा। अपने एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स कर दें, पाँव को, घुटनों को, हाथों को, कंधों को ढीला छोड़ दें, फेस पर ध्यान ले आए। आंखें भी एकदम शीतल, पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में ले आए, जहाँ तिलक लगाते हैं। मैं कौन हूँ? मैं एक जगमगाती ज्योति हूँ, अजर, अमर, अविनाशी हूँ। Peaceful soul, not body. मैं इस 5 तत्वों के बने हुए शरीर से अलग हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। देखिए, भ्रिकुटी के बीच में जगमगाती ज्योति, स्वयं के दर्शन करें। ऐसा अनुभव करें कि मैं एक पवित्रता का फरिश्ता, I am pure soul, I am pure soul। मैं पवित्र हूँ, पवित्रता की किरणें, पवित्रता की सफेद किरणें निकल मेरे शरीर के एक एक अंग को जा रही है। एक एक सेल के अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ती जा रही है। मेरे शरीर से चारों वातावरण में फैलती जा रही है। 5 तत्व भी पवित्र होते जा रहे हैं। चारों ओर का वातावरण एकदम शुद्ध हो गया है। अगर हम करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, सर्वशक्तियों के सागर परम पिता परमेश्वर से शक्तियों की किरणें उतरकर मुझ में प्रवेश करती जा रही है। मुझसे लेकर मेरे शरीर के
देखते जाएं स्वयं को। चारों ओर का वातावरण भी शक्तिशाली होता जा रहा है। शुक्रिया करें परम पिता परमेश्वर का, आपका शुक्रिया। आपका हाथ मेरे सिर पर है, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। योग कहलाते हैं। योग के दो अर्थ हैं, जोड़ना और समाधि। योग के अंदर दोनों ही अर्थ समाहित हैं। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ते तब तक समाधि मुमकिन नहीं है। योगा इज द नेम ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। भक्ति और ध्यान में जो अंतर है, योगा और योग में भी वही उतना ही अंतर है। ध्यान से समझना, शरीर द्वारा ईश्वर की याद में की जाने वाली क्रियाएं भक्ति है। थोड़ा ध्यान से समझना, शरीर द्वारा ईश्वर की याद में की जाने वाली क्रियाएं भक्ति है। शरीर से उपरांत होकर ईश्वर को याद करना ध्यान है, समाधि है, मेडिटेशन। सिर्फ दो शब्दों का हेरफेर है, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं और शरीर से उपरांत होकर भगवान को याद करना, इन दोनों में ये अंतर है। इसी तरह से योगा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया व्यायाम योगा है। मन को स्वस्थ रखने के लिए आत्मा का परमात्मा से मिलन योग। आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। ध्यान रहे, इसको ध्यान से समझें, क्योंकि इस श्री राधा कृष्ण पाठशाला मंदिर के प्रांगण के अंदर भक्ति, ज्ञान और योग, इन तीनों का संगम उस समय से चल रहा है। जैसे कि हम कुंभ का जब मेला लगता है तो त्रिवेणी में नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो उसका बहुत महत्व माना जाता है कि हम त्रिवेणी में स्नान करके आए हैं। कोरोना काल में हम त्रिवेणी में नहीं जा सकते, तो भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि इस परिसर के अंदर ही उन्होंने त्रिवेणी का संगम, जो कभी कभी कुंभ पर जाते थे, हर इतवार को आप यहाँ इस त्रिवेणी में डुबकी लगा सकते हो और जो वो महात्म था उससे कई गुना फायदा ले सकते हो, क्योंकि इसके निमित्त बने इस मंदिर परिवार के जो भी सदस्य हैं उनका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें उन्होंने ऐसा परिसर, ऐसा स्थान, ऐसा वातावरण दिया है। मैं इस अच्छे कार्य के लिए इस परिवार को, इस मंदिर की सभा को सल्यूट करती हूँ। तो इसके लिए हमें अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
इमोशनल हेल्थ के लिए इमोशनल डाइट अच्छी होनी चाहिए। इमोशनल डाइट कहाँ से आती है? जैसे किचन में खाना बनाते हैं तो मार्केट से सामान आता है, इसी तरह से इमोशनल डाइट जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, आजकल कहाँ से देखते हैं सब कुछ? मोबाइल से, टीवी से। जो कुछ हम देखते हैं या सुनते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है, जाने अनजाने। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे अंदर क्या फीड हो रहा है। ये बहुत सूक्ष्म बात है और एक समय ऐसा आता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वैसा ही हमारा शरीर, हमारा मन कार्य करने लग जाता है। हम बाहर की दुनिया को देखने और समझने में लगे हुए हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमें कहाँ देखना है? अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है, उसको समझना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या ठीक करना है। जो शांति है वो बाहर की दुनिया में नहीं है, वो आपके अपने पास है। वो भगवान ने आपको देकर भेजी थी और कहीं ना कहीं विकारों की लेयर्स उसके ऊपर आ गई है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? जो हमारे अंदर, हमारे भीतर अक्षमा भरी होगी तो अक्षमा निकलेगी, प्रार्थना भरी होगी, प्रार्थना निकलेगी, गुस्सा भरा होगा, गुस्सा निकलेगा, नफरत भरी होगी, नफरत निकलेगी। फिर कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं तो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि इसके कारण से मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, ये हमारे अंदर भरी हुई हमारी संपदा है, हमारी प्रॉपर्टी है, जो समय देखते ही बाहर निकल जाती है। क्या करेंगे? हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? स्टार्ट्स विद यू। पीस स्टार्ट्स विद यू। कहीं किसी रिलेशंस में, किसी जॉब में, कोई मनी में आपको कहीं से भी पीस, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। वो कहाँ से मिलेगी? आपसे खुद से ही मिलेगी। कहते भी हैं योगा हैज द पावर टू क्रिएट हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हार्मनी विद इन आवरसेल्व्स। जो योग है हमें हीलिंग पावर भी देता है और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा योग ही हमारा सुरक्षा कवच बना, क्योंकि योग से ही इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। योग से ही हमारी जो विचार शक्ति है उसको और पॉजिटिविटी मिलती है। कहने का अभिप्राय है कि हम जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, पर मानते कुछ भी नहीं। एक छोटी सी स्टोरी से इसे समझिए। एक भिखारी थी, उसको राजा ने अडॉप्ट कर लिया और वो राजकुमारी बन गई। महलों में लेकर आए, नहलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, अच्छा खाने को दिया गया, पर मांगने का संस्कार नहीं दिया, क्योंकि उसने जान तो लिया मैं राजकुमारी बन गई, माना। इसी तरह गीता में कहा गया 5 विकार छोड़ो। हमने जान लिया, पढ़ लिया, माना। टीचर्स ने बताया गुस्सा मत करो, सुन लिया, माना। राइट? होता है। इसलिए जानने की बजाय माने।
कोई भी धर्म है वो धारणा के लिए है। जब हम जान ज़्यादा लेते हैं, मानते कम हैं, तो क्या होता है, हमें डिप्रेशन हो जाता है। क्या हुई डिप्रेशन की जड़? जानना ज़्यादा, मानना कम। इससे क्या होती है, हमारी मानसिक एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है, आत्मबल जो होता है हमारा कम हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि डिप्रेशन क्या है, कितने टाइप्स का है, उसका क्या कारण है, उसके लेवल्स क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और हम कैसे इससे छुटकारा पाएं। तो डिप्रेशन मीन्स मूड डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अवसाद, कुछ भी कह सकते। तो ये मेंटल डिसऑर्डर क्या है? कैसे पता लगाएं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है भी या नहीं है? ये छोटे छोटे मैं आपको टिप्स बताती हूँ। वो सिर्फ पहले पहले खुद को ही पता चलता है। हम जो रूटीन के काम कर रहे होते हैं उसमें मन ना लगना, हर कार्य करने से पहले मन में आना कि मैं नहीं कर सकती, अपने अंदर चिड़चिड़ापन सा आ जाना, हर काम करने से पहले सोचना, असहाय फील करना कि नहीं, ये आपको पता चलेगा, ये स्टार्टिंग है। कारण क्या हो सकता है इसका? सबसे बड़ा कारण होता है फियर। जब इंसान झूठ बोलता है ना, उसको हमेशा फियर रहता है। सेकंड कारण क्या हो सकता है? कोई बोल के बता भी सकता है। अगर कोई मेरी ऐसी चीज है मुझे बहुत प्यारी है, वो छीन जाए, किसी अपने मित्र संबंधी की या किसी अपने परिवारजन में से किसी की मृत्यु हो जाए, या अहंकार बहुत होता है, जब मेरे अहंकार को ठेस लगती है तो स्ट्रेस, अपमान की फीलिंग होना, बॉडी कॉन्शियस में रहना, आत्म बल की कमी, बहुत से ऐसे छोटे छोटे कारण हैं। अब हम आपको सिम्टम्स बताएंगे, यहाँ तक तो आपको ही पता चलेगा, इसके बाद जो बाहर आएगा निकल कर, बहुत अधिक गुस्सा आना, बहुत अधिक भूख लगना या बिल्कुल ना लगना, चेक करते चले जाए। हर समय टायर्ड फील करना, बदन दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कईयों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो ये ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो दूसरों को, घर परिवार को पता लगना शुरू हो जाएगा। वो पूछेंगे आपको क्या हो गया, तो आप भी बड़ा नर्वस सा फील करते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा। पर हम ज़्यादा बात करेंगे कि जो हम इसमें फंस गए हैं तो कैसे निकलें। ये एक दलदल है। स्ट्रेस क्या है? एक दलदल है। जितना आप इससे निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। इसका सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है, एक मेडिटेशन, एक काउंसलिंग। एनी इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स that has harmful your mind or body, कोई भी ऐसी चीज या आपकी माइंड को हार्म कर रही है या बॉडी, यहीं से हमारा स्ट्रेस शुरू होता है। सफरिंग बिगिंस कहाँ से शुरू होती है? When the connection with
इनर सेल्फ। आपका कनेक्शन खुद से टूट जाता है। क्या है? कनेक्शन विद इनर सेल्फ एंड meditation is the only way to re-establish that connection. इस कनेक्शन को हम दोबारा से जोड़ सकते हैं अपने से मेडिटेशन के द्वारा। अब हमें फियर हो गया है, अब फियर से कैसे भागे? एक बार की बात है, 2 महिलाएं थी, उनको शारीरिक बीमारी हो गई, कैंसर। दोनों को एक जैसी बीमारी, एक जैसे हॉस्पिटल में एडमिट थी, एक जैसा ट्रीटमेंट चल रहा था। उनको किसी ने आकर बताया दोनों को कि आपके पति ने आपको तलाक दे दिया है। सेम सिचुएशन, सेम ट्रीटमेंट। जैसे ही एक महिला ने सुना तो उसने प्राण त्याग दिया। दूसरी ने सुना, वो स्वस्थ होकर उसने क्या सोचा, कोई बात नहीं, मैं इस बीमारी से ठीक होने के बाद फिर कुछ सोचूं। एक जैसी सिचुएशन, इसलिए हमें फियरलेस बनना। कई बार हम इतना व्यर्थ, इतना नेगेटिव सोच लेते हैं कि खुद ना चाहते हुए भी उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पाते, नीचे उतरता है, राइट? जब हम नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं पानी को तो पंप को यूज करते हैं। हमारा स्वभाव है अच्छा सोचने का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, खुशी। उसकी बजाय हम क्या करने लगे? झूठ बोलना शुरू किया, नफरत करनी शुरू की, ईर्ष्या करनी शुरू की। क्या हुआ? हमने उल्टी गंगा बहा दी। तो पंप का यूज करना पड़ेगा। पंप क्या? आपका हार्ट पंप, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब हम ज्यादा काम लेंगे तो हमारा क्या होगा? एनर्जी लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा। कोशिश करें कि हम पॉजिटिव सोचें। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। किसी ने सुन लिया कि एक बार डिप्रेशन हो गया तो फिर ठीक नहीं होगा, बस शुरू हो गया, मेडिसिन खा रहे हैं। बीमारी मन के अंदर है, मेडिसिन शरीर को मिल गई। कि एक बार एक दूध वाला था, उसने अपनी दूध का जो ड्रम था रखा हुआ था, वहां पर 2, जिसको डड्डू कहते हैं, प्रोब, वो घूम रहे थे। वो जैसे ही दूध का ड्रम खुला तो 2 डड्डू अलग अलग से उसके ड्रम के अंदर चले। था एक प्रोब में कि एक बार तरल पदार्थ में गिर गए तो मर जाओगे, तो उसने कोई कोशिश नहीं की और वो ड्रम के अंदर ही मर गया। दूसरे ने सुना हुआ था किसी बुजुर्ग से बात करते हुए कि हमेशा गोल गोल घूमते रहो उसके अंदर। घूम रहे थे तो दूध में क्या आ गया? मक्खन आ गया। जैसे ही मक्खन आता गया तो फ्रॉग ऐसे 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 ड्रम के ऊपर आता गया, तो वो मक्खन के ऊपर बैठ गया। जैसे ही वो ऊपर आया तो उसने बाहर जंप कर घूमे। मीन्स अपने को चेक करें कि किस कारण से मुझे ऐसा होता है, तो वो निकाले और अपने आप ही जंप लगा। कई बार क्या होता है? टायर्ड फील करते हैं, बहुत टायर्ड फील करते हैं, घर का कोई काम नहीं करते तो घर में भी फिर क्या होता है? थोड़ा सा माहौल खराब हो जाता है कि तुम्हारा रोज का काम है करेगी या कोई हमारे चावल पका दे। जब हम सोलर में उसको जमा कर लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं,
और समय आने पर हम उससे कुकिंग भी कर सकते हैं, फैन भी चला सकते हैं, कोई भी काम ले सकते हैं। इसी तरह परमात्मा की याद में बैठकर आत्मा के अंदर शक्ति भर ले और ऐसी कोई सिचुएशंस आए तो उस शक्ति को यूज करें। मुश्किल तो नहीं, इजी है। सिर्फ शक्ति भी आपको ही भरनी है, आपने ही तो खर्च की है, आपका ही मन है, आपको ही फिर भरनी है, क्यों नहीं भर सकते? एक बार की बात है कि एक मित्र एक अपने दूसरे मित्र के पास आता है तो कहता है कि यहाँ एक गांव में नजदीक ही एक वाघ स्वामी नाम का कोई साधु रहता है और वो बड़ा पहलवान है, बहुत ताकतवर है। वो कभी भी आज तक अपनी जिंदगी में शेर से लड़ाई करने पर भी नहीं हारता, वो शेर से भी जीत जाता है। तो उसके दोस्त को बड़ा अच्छा लगा, तो शाम होते ही वो उससे मिलने चल पड़े। जाकर देखा तो उसकी सेहत को देखकर कहने लगे कि आप तो बड़े ताकतवर हो। तो ऐसे बातें करते करते उनको शाम हो गई, पर वो फिर अपनी बात पर आए कि ऐसी कौन सी आपके पास ताकत है कि आप शेर के साथ लड़ लेते हो और आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो शेर से लड़ाई करे तो वो जिंदा बच जाए। तो कहता है कि ये शक्ति मुझे मेरे मन ने दी है। किसने दी है? मन ने दी है। मन से ही हम डिप्रेस होते हैं और मन की शक्ति क्या है कि मुझे सामने वो कागज के शेर दिखाई देते हैं। मेरे मन के अंदर ऐसी ताकत है कि मुझे वो सामने कागज के शेर दिखाई देते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे मन के पास इतनी शक्ति है, वो शक्ति हम कैसे लेकर आए, इसका एक छोटा सा मैं आपको टिप्स बताती हूँ। जो भी आपने काम करना है, जैसे बच्चों को परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो एक बार में एक विचार करें कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। मतलब एक अंदर ऐसा व्यू बनाए कि मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। ये है हमारे अवचेतन मन के अंदर जब कोई बात चली जाती है, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जब कोई बात चली जाती है तो वो पूरी होगी। ध्यान से सुने, वो पूरी होगी। ये तो मेरे पिताजी खाना खा रहे थे, उनसे रोटी जल काली रोटी, माता ने वही रोटी पिताजी को दे दी। पिताजी ने चुपचाप खा ली। माँ ने पूछा कि रोटी ठीक लगी, तो उन्होंने हाँ में करकर हिला। तो वो बच्चा छोटा था, अब्दुल कलाम 7-8 साल का, तो बैठा सब कुछ देख रहा था। तो थोड़ी सी देर के बाद जब माँ बाहर चली गई तो उसने पूछा कि पापा आपको ये जली हुई रोटी अच्छी लगी? पिताजी ने गर्दन हिला ना। कहते फिर माँ को आपने क्यों बोला? कहते बेटा जली हुई रोटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एक जला हुआ शब्द इंसान की सारी जिंदगी जला। जितनी जल्दी हो सके जंप लगा दे फ्रॉक। एक और बात उसमें बहुत अच्छी लिखी हुई थी कि कहते एक बार अब्दुल कलाम जी ने उसमें लिखा था कि मैं समुद्र के किनारे गया, अपनी नानी के घर गया हुआ था, तो वहां मैं अपनी कजन के साथ, मामा की बेटी के साथ समुद्र किनारे चला गया और वहां शायद कोई पेड़ होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, तो कहते उस पेड़ पर चढ़ गया और वो मेरी बहन भी
पेड़ पर चढ़ गए। तो एकदम से तूफान उठा, बहुत तेज हवाएं चलने लगी समुद्र में। मेरी माँ ने नीचे से क्या बोला मुझे, बेटा जोर से पकड़ लेना नहीं तो गिर जाओ। मामी ने क्या बोला, बेटा गिर जाओगे, जोर से पकड़ो। क्या फर्क था शब्दों का हेतु। माँ ने कहा जोर से पकड़ना बेटा नहीं तो गिर जाओगे। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो पहली बात थी पकड़, वो नहीं गिरा, उसकी बहन गिर गई, क्योंकि उन्होंने पहले क्या बोला, आप गिर जाओगे। सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना शुरू कर दिया। हम क्या बोलते हैं घर में बच्चों को, तू पक्का फेल होएगा, नहीं तो पढ़ ले। तू जो कुछ वो खाना खा रहे हैं, कोई बर्गर पिज्जा खा रहे, तेरा पेट अवश्य दुखेगा, तू पक्का बीमार होगा, नहीं तो ये छोड़ दे। बच्चे को क्या बोले, बच्चे आप पढ़ो, आपके अच्छे मार्क्स आए, आप अच्छे मार्क्स लेने के लिए पढ़ो। हम क्या कहते हैं, मैंने कह दिया पक्का तो फेल होएगा, और जब वो फेल हो जाता है तो कहती है माँ देखा, मैंने पहले बोला था ना। क्रश किसने किया, किसने शाप दिया अपने बच्चे को, खुद दिया। अगर बच्चा कहीं गिर जाता है या कोई और हरकत करता है, वो माँ को बता रहा कि माँ मैं मूवी देखने गया था, क्योंकि बच्चा बड़ा इनोसेंट होता है। तो माँ क्या करती है, डांटती है। अब बच्चे को पता चल गया मूवी देखना गलत बात है, मूवी तो वो देखेगा पर माँ को नहीं। ये है स्ट्रेस। एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत आध्यात्मिक बात के बारे में बताया कि हमारे जो ब्रेन है उसके 10 पार्ट्स। आपको याद होगा, आप सबको याद होगा, जब हम छोटे थे कुछ गलती करते थे तो हमको कॉपी पर लिखने के लिए 5 टाइम्स दिया जाता था कि 5 टाइम्स लिख कर लाओ, 10 टाइम्स लिखो, 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, और हम बड़ा इरिटेट होते थे कि क्या बात है ये, 10 हिस्से होते थे। अगर मैंने एक बार ये सोच लिया कि मैं सत्यम, मैं सत्यम शिवम सुंदरम को याद करूंगा, एक बार बोला हमारे ब्रेन के एक हिस्से को, या मैंने बोला आई एम हेल्थी, मैं स्वस्थ हूँ, या मैं 90% मार्क्स लूंगा, बाकी 9 हिस्से जो 9 पार्ट है उनको तो हमारे गोल का पता ही नहीं, तो हम जैसे ही थोड़ा 1-2 दिन के बाद भूल जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है बार बार राम राम करो, बार बार हरे कृष्णा करो, बार बार ओम नमः शिवाय बोलो, ताकि हमारे ब्रेन के एक एक हिस्से को पता चल जाए। जो काम आपको बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है काम, ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो उसको बार बार अपने मन को विचार दो, और वो ही विचार आप अपने सामने विजुलाइज करना शुरू कर दो, जैसे कि वो हो रहा है हमारे सामने। जैसे जैसे आप उसको बार बार रिपीट करेंगे, वो काम होना शुरू हो जाएगा। ये है आपके पास आपकी शक्ति, आपकी ताकत है, आपके पास है, कहीं बाजार में नहीं मिलेगी। कहीं तीर्थ स्थल पर जाओ, जरूर जाओ, दर्शन करके आओ, एंजॉय करके आओ, पर शांति आपको क्या कहते हैं, घर जाके आज दाल रोटी खाएं। होता है ऐसा, घूमने के बाद 4, 5, 10 दिन क्या कहते हैं, आज आराम से घर जाके हम दाल रोटी खाएं। क्यों? आराम कहाँ था? मेरे पास ही था। हम भीड़ में चले गए, वहाँ आराम नहीं होता। जाइए, करिए कुछ भी, मगर ये देखिए कि हमें
ये करने से क्या प्राप्ति हो रही है। ये नहीं कि हमने 2 घंटे वहां बिताए, शायद एनर्जी ही डिप्लीट कराए, अपनी एनर्जी डिप्लीट ना करें। किसी भी कीमत पर आपको धन मिल जाएगा, मान सम्मान मिल जाएगा, मगर जो आपकी एक बार एनर्जी डिप्लीट हो गई वो आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए 5 मिनट के लिए हम खुद को ही चार्ज करेंगे। अपनी शक्तियां जो हमारे पास है, जो सोई पड़ी है, उसको फिर से जागृत करेंगे। बैठे अपने साथ मौन रहने की कोशिश करें। घर में भी जब आपको समय मिले चुप मौन बैठ जाए आराम से। मौन में सबसे ज्यादा पावर है मन का मौन, मुख का मौन नहीं, मन का मौन। कई लोग ऐसे भी होंगे यहाँ बैठे हैं मगर मन घूम कर आ रहा होगा इधर उधर, नहीं, मन का मौन है। बैठे 2 मिनट, मैं सबसे पूछूंगी क्या क्या चल रहा था मन में। 2 मिनट अपने साथ बैठे आराम से सीधे होकर और आते जाते विचारों को देखें और फिर मनन करें कि इसकी जरूरत है मुझे। ओम शांति। कोई बताएगा क्या विचार कर रहे थे, फिर आगे चले। कोई भी बताए, कोई बच्चा बड़ा, कोई भी क्या विचार कर रहे थे। तो अपनी कमियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। कभी भी किसी से प्रतिशोध ना ले, उसकी बजाय हम आत्म बोध करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें अपमान की फीलिंग हो जाती है। कई बार हमारे अंदर ही ईगो होता है। जब उस ईगो को चोट लगती है तो हम बदला लेने की भावना से भर जाते हैं। एक बार एक राजा थे, तो वो मंदिर आए, उसने अपनी चरण पादुकाएं बाहर निकाल दी। जो द्वारपाल था उसने सोचा कि राजा की चरण पादुकाएं हैं, इसको मैं अपने जो उसने ऊपर लिया हुआ था उससे अंगोछे से साफ कर दी। पर अंगोछा उसका गंदा था, जिसके कारण चरण पादुकाएं मैली हो गई। जैसे ही राजा बाहर आए तो राजा ने कहा कि ये किसने किया। द्वारपाल ने कहा कि ये मैंने, मेरा ही कारण से ऐसा हुआ है, मैं इसको साफ करना चाहता था पर ये गंदी हो। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने वो चरण पादुकाएं उसके सिर में जोर से और वो चला। जो द्वारपाल था वो घर गया, घर में खाना पीना छोड़ दिया और अपने आप को बेड पे लेट गया, अपने आप को तकलीफ दे दिया। तो उसकी पत्नी ने समझाया कि इस तरह अपने आप को तकलीफ देने की बजाय आप कुछ करो। वो पत्नी की बात मानकर उठकर नहाकर खाना खाकर पढ़ने के लिए वाराणसी चला। 10 साल के बाद आचार्य बनकर वापस आए। तो वो राजा की माँ बीमार थी, उसने अपनी माता के स्वस्थ करने के लिए एक हवन करना। वो हवन किसने करवाया? उस आचार्य ने। आचार्य को पूछा गया दक्षिणा बताओ क्या लोगे?
दक्षिणा में क्या मांगा उसने? चरण पादुका। तो वो उस चरण पादुकाएं की इतनी सेवा करने लगा, उनको साफ करता, धूपबत्ती करता, पूरी श्रद्धा, पूरे शहर के अंदर ये आवाज हो गई। तो राजा एक दिन आए तो पूछा कि आपकी इतनी श्रद्धा क्यों है चरण पादुकाओं के प्रति? तो उसने कहा, इन चरण पादुकाओं के कारण ही आज मैं आचार्य बना। वो कहते कैसे, इस सारी कहानी उसने बताई। राजा बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने उसे अपने राजमहल में राज पुरोहित के रूप में रख लिया। कहने का अभिप्राय ये है, अगर कोई छोटी सी बात लेकर मैं अपना स्वास्थ्य खराब करूं, स्ट्रेस में चली जाऊं, डिप्रेशन में चली जाऊं, अवसाद में चली जाऊं, उसका क्या फायदा है? उस बात को पॉजिटिव लेकर कुछ करके दिखाएं। कोई डिप्रेशन, कोई मोल थोड़ा ही मिला था मुझे कि मैं खरीद कर लाई, ना फिर इसकी कोई मेडिसिन है। दोनों का आपके हाथ। तो इसलिए जिन्होंने तीनों सेशन अटेंड किए हैं, आज फोर्थ भी अटेंड किया है, वो थोड़ा हाथ खड़ा है। कोई भी अपना, हमारे पास 7-8 मिनट का समय है, मैं आज आपके मुख से 2 मिनट सुनना चाहती हूँ कि आपको उससे क्या फायदा हुआ, ताकि हम उसको आगे बढ़ सके। हिम्मत करके आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। और भी तैयार, भाई लोग भी तैयार हो। सारी टेंशन बर्डनफुल, और जो पूरे दिन में जो होना था उसका भी बर्डनफुल मेरे मन में रहता था, और सिर सुबह से भारी हो जाता था। जब से इतना ये सुना है ना कि मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं खुश रहूँगी, मैं खुश हूँ, सब अच्छा है, बस ये 5 मिनट अपने आप को दिए मैंने सुबह, और इससे मुझे बहुत बहुत फर्क नज़र आया। और स्ट्रेस भी नहीं रहा, सिर भी भारी नहीं हुआ, बहुत खुशी खुशी मैं सुबह उठती थी। इनके लिए तालियां। और कोई आए? ऐसे ये कथा थोड़ा ये रोज सुन के चले जाओगे। कोई भी आए? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी के भी जीवन में कोई ना कोई घटना हो तो वो कोई ना कोई उपदेश देके जाती है। जैसे कि एक बार एक सेठ बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल में ले गए। जब हॉस्पिटल में ले गए तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाई, 1 वीक वो ऑक्सीजन में रहा और ठीक हो गया। उसके बाद जब उसने बिल दिया तो छुट्टी लेके घर जाने लगा तो वो रो पड़ा। तो डॉक्टर ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, क्यों आपका बिल ज़्यादा बन गया है? तो उसने बोला कि बिल की मुझे कोई परवाह नहीं है, बिल कुछ नहीं बना, मैं तो उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहा था जिसने मुझे इतने साल फ्री की ऑक्सीजन दी हुई है। तो हमें हर वक्त उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें फ्री की ऑक्सीजन दी हुई है और हमें इस तरह से अपनी विल पावर मजबूत करने का अवसर मिलेगा। ओम शांति। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ
होना बहुत जरूरी है। जिस तरह हुणे साडी भाभी जी दस के गए भी सानू इस वेले उठी ते अपने आप नूं महसूस किया मैं कर सकती हाँ। ये जदों साडे अंदर ये विश्वास पैदा हो जाऊगा भी मैं कर सकती हाँ, मैं कर सकता, बस एक कॉन्फिडेंस लियान की लोड़ है। दुनिया में कोई इदा का डिप्रैशन नहीं जिहड़ा ठीक नहीं हो सकता। जिस तरह इन्होंने दसिया जी, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं है। सब तो बड़ा अपने अंदर विश्वास पैदा करना। जदों तुहाडे अंदर ये विश्वास पैदा हो जाऊ मैं कर सकता, मैं कर सकता, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिहदा इलाज नहीं। सब तो बड़ी गल ये है भी तुहानू अपने अंदर एक विश्वास पैदा करने की लोड़ है, जो कि आपां खो चुके हैं किसी कारण। अपनिया शायद दुनियादारी दी गल्लां दे विच भुल चुके हैं भी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं। वो कॉन्फिडेंस नूं दोबारा पैदा करने की लोड़ है। जिस तरह कोई भी मन दे विच किसी दे कोई शंका आ जाती है, वो सब तो पहला जिस तरह दसिया अपने आप नूं ही पता लगता है, तो उसका हल भी आप ही करना पैंदा है। आपां गल्लां करदे हां, दूसरे की सलाह लैंदे हां, पर जदों साडा मन अंदरों आत्मा आवाज करती है भी मैं उठ, किसी भी तरह का कोई बीमार हो या कुछ भी, जो अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो मैं उठ के खड़ा होना, तो उठ के वो खड़ा होएगा। इसलिए मैं इस मंच तो भैन जी का दिल दी गहराइयां तो धन्यवाद करता, जिन्हां ने अपने इन्ने अच्छे विचार सानू दसे, जिन्हां तो सानू प्रेरणा लेनी चाहिए है। ते नाल एक मैं बेनती करदा सारे परिवार जिन्ने भी आए आ, ये जो सैशन चल रहा है वह बेनीफिट आपां दा लै ही रहे हैं। अपने नाल सज्जन मित्र दोस्तां सारियां नूं आपां प्रेरणा करिए भी हर संडे 12:30 बजे पाठशाला मंदिर दे विच ये प्रोग्राम चल रहा है, जिहदे विच आके सारे वध तो वध इहदा लाभ उठान। ओम शांति। ओम क्लास का भी कोई शांति। रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब और मंदिर कमेटी के सदस्य, उपस्थित जन, सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबने इस जरूरत को समझा कि आज शारीरिक बीमारियों से ज़्यादा जो पेशेंट है वो मानसिक बीमारियों के। मानसिक बीमारियां हमें इतना घर कर गई हैं, जैसे कि दीदी ने बताया कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। शरीर में कोई भी दुख दर्द होता है, हमारा सिर भी दर्द होता है, तो हमें लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा ही हमारे मन के अंदर कुछ चलता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि धीरे 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 वो कैसे हमारे मन के अंदर अपनी जगह बना रहा है और हम किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो मन के लिए हमें क्या करना चाहिए? मन के लिए हमें, जैसे दीदी ने बताया, मन को अच्छे अच्छे विचार देने चाहिए। मन को अच्छे विचार हम कैसे दे सकते हैं, इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हम टीवी देखते हैं, टीवी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो, हम 1 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है, मुझे नहीं देखना। क्या ऐसा संभव है? हम अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें और सोचें ये विचार मेरे मतलब का नहीं है, मुझे इस विचार को अपने मन के अंदर नहीं लेके जाना है। इसमें किसी का फायदा नहीं है, किसी का भी फायदा नहीं है, सिर्फ आपका अपना फायदा है। अगर आप बहुत अच्छी लंबी लाइफ, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी जीना चाहते हो तो आज से सबसे पहले आप एक काम करिए, अपने मन का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी के हाथ में मत दीजिए, वो अपने मन का रिमोट कंट्रोल है वो अपने पास रखिए। इसी के साथ मैं तहे दिल से एक बार फिर श्री राधे कृष्ण पाठशाला मंदिर कमेटी के सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस जरूरत को समझा और मेडिटेशन कैंप का यहाँ पे आयोजन कराया। टीम आईना की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी और का दिल है, अगर मन में आ रहा है तो आ सकते हैं, 2-3 मिनट हैं, आ जाइए प्लीज। फिर घर जाके लगेगा कि मैं बोली
कोई भी आ जाए, कोई आइए, जो क्लास करते हैं उसमें से आ जाए कोई भी, कुछ भी जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आपका कुछ नुकसान हो जाए, चाहे कैसा पेपर आ जाए, कैसी सिचुएशन आ जाए, अंगद की तरह मन और बुद्धि रूपी पांव हिले नहीं, हिले नहीं। चाहे रावण आ गया था, हाथ नहीं लगाने दिया उसे। इसी तरह जो मर्जी हो जाए, मन और बुद्धि की स्टेबिलिटी बनी रहे। आप खुद मालिक हो, खुद ही खुद को एनर्जी देंगे। 2 मिनट बैठे उस प्रभु की याद में। योग कुछ नहीं है, जैसे जैसे आपको समझ आता जाएगा योग लगता चला जाएगा। जब आपको ये समझ आ जाएगी कि परम पिता परमात्मा ईश्वर मेरा माता पिता है, बंधु सखा है, तो उससे जुड़ने में क्या देर लगेगी। योग दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। आज हम क्या चलाते हैं ज्यादा? दिमाग चलाते हैं। दिल से प्रेम करो, दिल से बातें करो। कैसे बातें करती हैं? आप मेरे माता पिता हो, आप मेरे बंधु सखा हो, आप मेरे बच्चे हो, हाँ, आप मेरे जो भी आपको रिश्ते में ऐसा लगता है कमी है वो बनाए और उससे खेले, उस रिश्ते में खेले उससे। मान लो आपके फादर नहीं है, फादर बनाओ। कोई भी काम करने लगो, उनका हाथ अपने सिर पे फील करें, उनको अपने साथ लेकर जाए घर से जाते हुए और साथ लेकर आए और थैंक्स करें। ये योग है। जैसे आप अपनी पत्नी से जुड़े हैं, पति से जुड़े हैं, बच्चों से जुड़े हैं, बिजनेस से जुड़े हैं, वो भी तो योग है ना। तो ये भी योग है। तो इसलिए योग कोई बड़ी चीज नहीं है। बस इतनी बात है कि जिसको जुड़ना है और जिससे जुड़ना है दोनों सूक्ष्म है, वही आंखों से दिखाई नहीं देते। इतना फर्क है। जिसको जुड़ना है और जिससे जुड़ना है दोनों दिखाई नहीं देते। क्योंकि वायरस भी दिखाई नहीं देता ना, फिर भी हम कितना डर रहे हैं। घरों में बैठे हैं, बिजनेस बंद है, स्कूल बंद है। डरने की बात नहीं है। दिव्यता, डिविनिटी, आई एम डिवाइन सोल, अपने अंदर दिव्यता जगाएं और उसके दर्शन करें, अनुभव करें उसके दर्शन। बैठे 2 मिनट अपने साथ, अपना ध्यान जहाँ आत्मा मालिक विराजमान है ले आए। ऐसा अनुभव करें और प्रेम की किरणें उतर उतर कर मेरे अंदर भरती जा रही। विजुलाइज करें जैसे मैं एक फाउंटेन के नीचे बैठी हूँ। भगवान का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। शुक्रिया करते परम पिता परमेश्वर का, आपका शुक्रिया। अपने शरीर का भी शुक्रिया अदा करें क्योंकि वो भी आपका साथ दे रहा है। 5 तत्वों का शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता आज ना ग्रुप का। तो मैं एक भैन जी को रिक्वेस्ट भी करना चाहना ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ करना चाहना भी एक क्लास भैन जी बच्चों की भी ला दी जाए। सारिਆਂ की प्रेरणा भी अपने बच्चों भी लियाओ ताकि वो भी एक
ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਅਗਲੀ ਸੰਡੇ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਈਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री। जैसे कि अभी एक भैया जी ने बोला है कि बच्चों के लिए क्लास, अगर आप सब ये चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लास हम बच्चों के लिए करेंगे। वो बच्चों के लिए ही स्पेशल क्लास होगी जिसमें कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उनकी काउंसलिंग भी करेंगे और उन्हें थोड़ी सी मेडिटेशन के बारे में भी बताएंगे। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आ सकते हैं ना, स्कूल कॉलेज दोनों के बच्चे आ सकते हैं। बड़े पेरेंट्स साथ अपने बच्चे देखें। हाँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने साथ लेंगे। ओम शांति। थैंक यू। मैं सभी परिवारों से निवेदन करूंगा कि अगले संडे को आप अपने साथ अपने सभी बच्चे लेके आएं, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। ओम शांति।